Very welcome to Unacademy IAS. Let's start another session under the 70th BPSC interview guidance program. And this is an offering by Unacademy, all right, associated with the current affairs. And under this, as I always do, you will see national current affairs as well as Bihar specific डेवलपमेंट्स एंड यहाँ पर भी जो बिहार के साथ में कनेक्शंस होंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे. ऑल राइट, सो अंडर दिस लेट्स एग्जामिन द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी विश्व गुरु विजन एक्सप्लेन्ड, women's labor and recognition, US actions in Venezuela. All right, then India's seafood export boost, census 2027 key significance, olive ridley turtle conservation in Rajgir as migratory bird hub. All right, so first thing first topic को उठाते हैं पहले तो विश्व गुरु विजन एक्सप्लेन्ड. ऑल राइट, एक्चुअली इन रिसेंट ईयर्स वी ऑल हैव हर्ड, हम सब ने लगातार ये बात सुनी, लगातार सुनते रहते हैं कि इंडिया हैज अ एस्पिरेशन, अ डीप डिजायर, डीप एस्पिरेशन टू बिकम द विश्व गुरु. विश्व गुरु मीन्स व्हाट? ग्लोबल टीचर. ऑल राइट, एंड इन रिसेंट ईयर्स वी आर पुशिंग फॉर विश्व गुरु to Vishwamitra. All right. So first of all, let's examine Vishwaguru. What is the idea behind Vishwaguru? All right. जब हम विश्वगुरु की बात करते हैं, then India यहाँ पर highlight करता है. We highlight this thing that Indian civilization, all right, and generating original ideas rooted in Indian civilization and adapting them to shape global discourse in peace, sustainability, ethics and governance. All right, like अब ऐसे कौन कौन से आइडियाज हैं इन द इंडियन सिविलाइजेशन, ऑल राइट, जो कि यहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर में पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एथिक्स एंड गवर्नेंस में गाइड कर सकते हैं. बिफोर आई टेक यू फॉरवर्ड, आई वांट टू थ्रो मोर लाइट ऑन दिस आइडिया ऑफ विश्व गुरु. ये जो विश्व गुरु का आइडिया है, इस पर थोड़ा सा हम लोग और देख लें. देखिए एस्पिरेंट्स, whenever we talk about this idea of विश्व गुरु, then what do we mean by, हमारा कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं. So we technically want to highlight the moral intellectual leadership through knowledge, ethics and dialogue rather than coercive power. यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? विश्वगुरु means what? Moral intellectual leadership, all right, through knowledge, ethics and dialogue rather than coercive power. मतलब मिस की पावर का इस्तेमाल ना करके हम नॉलेज शेयरिंग, डायलॉग, ऑल राइट, एथिक्स के थ्रू दुनिया के अंदर में इनोवेशंस को प्रमोट कर सकते हैं. ऑल राइट, और ये जो हमारा एंशियंट विजडम है, दिस कैन पुश और दिस कैन प्रोवाइड a push to the innovations. All right, so अब अगली चीज यहां पर है कि कैसे हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल फाउंडेशंस यहां पर क्या क्या है जो कि हमारी हेल्प करेंगे. देन वी कैन इंटीग्रेट विद द प्रेजेंट इंडीवर्स, कि वर्तमान में हमारे जो प्रयास हैं उनके साथ में हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं. एंड एट लास्ट डेफिनेटली वी विल कनेक्ट विद द some
challenges जो कि प्रेजेंट में हमारे चैलेंज सामने challenges है, all right, and global perspective यहाँ पर क्या है. Fine. So let's start examination. Let's start discussion. Aspirants. So first of all, when we see, then in India we have Indus Valley civilization. Indus Valley civilization, which is also known as Harappan civilization. All right. And the town planning. Town planning of Harappans is still very relevant. आज तक till date relevant है town planning Harappans का. And the whole world, अगर आप present scenario में देखें, then the whole world is facing a problem. पूरी दुनिया के सामने एक समस्या दिखती है हमको. And what is this problem? The problem of irregular urbanization. Irregular urbanization. All right. It's a major problem. It's a major problem in front of the modern world. All right. तो मॉडर्न वर्ल्ड के सामने ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है. एंड विद द हेल्प ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द our understanding about the Indus Valley civilization. So this understanding can help us. ये understanding हमारी help कर सकती है problems को solve करने में. As well as definitely this town planning, may lead to innovation and source of inspiration to many startups. All right. Under this town planning, we see variety of aspects with the drainage, road construction, separate areas, all right, water harvesting. So these are the things जो कि इंडिया के पास हमें रही हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है. ऑल राइट. सो डेफिनेटली ये एक नॉलेज बेस है हमारा. आफ्टर दिस you can see the Bauddha and Jaina religion. Bauddha and Jaina religion. All right. So whenever we examine these two religions, so there is a present connectivity, present relevancy of these two religions. And this connectivity is associated with the non-violence. दोनों ही religion को अगर आप देखें, so you can see this idea of non-violence दोनों में दिखता है. और आज के टाइम पर जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर conflict zones are increasing, conflict areas are increasing, all right, so this is a major point of concern for all of us, right. so ऐसे में non violence का idea definitely हमारी help कर सकता है. then we have idea of non possession, especially with respect to जैना रिलीजन जो है वो हमारे सामने आइडिया प्रेजेंट करता है नॉन पोजेशन का. एंड नॉन पोजेशन को हम जोड़ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट विद द मिनिमलिस्ट अप्रोच और अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म. और ऐसे भी आप इसको जोड़ो कि व्हेन वी सी द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, हम जब सोशलिज्म की बात करनी शुरू करते हैं, ऑलराइट, whenever we talk about the socialism, so socialism इंसानों की जरूरत को पूरा करने की बात करता था. कैपिटलिज्म को whenever we examine capitalism मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने की बात करता है. all right. so Jaina religion, the idea given by Jaina religion, that idea of non possession, all right, कि जो जरूरी है आप उतना ही रखें अपने लिए, that's it.
ऐसे में चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो क्लॉथिंग्स हो, चाहे तो वो फ्लैश सेल्स हो, इन सब के ऊपर में एक एक आप समझे यहाँ पर एक थॉटफुल चेक इंट्रोड्यूस करता है, दिस आइडिया ऑफ नॉन possession, and this idea of non possession integrates with the idea of minimalism, which is gaining popularity in west, especially in Europe as well as in America. All right, okay, so these are the things जिनको हम यहाँ पर जोड़ करके देख सकते हैं। और भी आइडियाज है, मैंने फंडामेंटल्स उठाए हैं यहाँ पर समझाने के लिए, बिकॉज करंट अफेयर्स के साथ में हमें करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ करके इसको दिखाना है, समझाना है। ओके, देन aspirants, we have masterpiece on the administration, and that book is Artha Shastra. That book is Artha Shastra. All right, then we have then we had Takshashila University. We had Takshashila. In Gupta period, Nalanda University was founded. Post Gupta period, under Pala regime, one more university was founded, which was Vikramshila University. All right. So aspirants, you can see here, Takshashila University was the prominent center of learning. Fine. As well as Nalanda University. Even we did the revival of Nalanda University. Nalanda University को तो हमने फिर से रिवाइव भी कर लिया। अपने टाइम की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक, एंड सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा। ऑल राइट, सो वरियस स्ट्रीम्स, ऑल राइट, ज्ञान के अलग अलग विधाएं, उनका जो स्टडी है वो नालंदा में किया जाता था। ऑल राइट, देन वी हियर अबाउट तख्त विक्रमशिला। हम विक्रमशिला की बात करते हैं। फाइन, okay, many Chinese travelers visited Nalanda, especially we see the man Wensang when visited India in post Gupta period, then Itsing, both visited Nalanda. All right, then in Gupta period also, what we hear about, we see Aryabhatta, वाराह मिहिर, आचार्य चाणक्य का नाम तो मैं पहले ही ले चुका हूं विद रिस्पेक्ट टू अर्थशास्त्र। देन भास्कर, ब्रह्मगुप्त। ऑल राइट, सो अब इन सारे स्कॉलर्स का जो वर्क है, फाइन, उस वर्क को हम दुनिया के सामने शोकेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारी लेगेसी कितनी शानदार रही है, और इसी लेगेसी को बेस बना करके वी कैन कंट्रीब्यूट इन द modern times as well. If you see scientific development in the modern times as well, then in India you will see Jagdish Chandra Bose, all right, C.V. Raman, right? So these are some other scholars, Satyendranath Bose, P.C. Ray, right? So these are other scholars who contributed a lot in India, right? As well as led a way, खास तौर पे अगर आप देखें एस एन बोस सर को देखें, तो एस एन बोस सर का नाम गॉड पार्टिकल की स्टडी की हम बात करते हैं तो वहां पर भी जुड़ता है। एज वेल एज जेसी बोस को, व्हेन वी सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेसी बोस सर, सो प्लांट्स, पौधों में भी, प्लांट हैज अ लाइफ, पौधे में जीवन होता है, इस बात को दिखाने वाले जो मेजर साइंटिस्ट जो हमारे सामने आते हैं वो जगदीश चंद्र बोस आते हैं। फाइन, ओके, एंड मैनी रिसर्च डन बाय द सीवी रमन सर। ओके, सो विद दिस यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग, आपको एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई होगी कि हमारे पास में एक अच्छा नॉलेज बेस तो है, वी हैव अ वेरी रिच नॉलेज बेस, राइट। अब इस नॉलेज बेस को हम कैसे यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर देखें, अभी इंडिया जो यहाँ पर देखता है चीजों को, इंडिया सीक्स टू मूव बियॉन्ड अ नॉलेज इकोनॉमी टू अ नॉलेज सिविलाइजेशन। नॉलेज इकोनॉमी, that means we are providing multiple services,
knowledge based services, BPO, KPO, all right, as well as IT services to many nations, many countries. Fine. And अब यहीं पर मुद्दा आता है कि नॉलेज इकोनॉमी तो ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी तो ठीक है, बट वी वांट टू बिकम नॉलेज सिविलाइजेशन. ऑल राइट, दिस मीन्स एथिक्स, साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्लूरलिज्म, इनको मिक्स करके we can provide a leadership in uh, the field of culture. How? Aspirants, we all we all hear about theosophical society. हम सब theosophical society के बारे में सुनते पढ़ते हैं. Theosophical society. All right. Theosophical society, मैडम ब्लाउटस्की, कर्नल अल्कॉट, और इन्होंने भी क्या किया था? So under theosophical society, India's philosophy, pluralism, all right, इसी को हाईलाइट किया गया था, इसी को शोकेस किया गया था in front of the world, as well as speech given by Swami Vivekananda in Chicago. Swami Vivekananda, he also highlighted this pluralism. जो प्लूरलिज्म है इंडिया के अंदर में, प्लूरल कल्चर है, इसी को हाईलाइट किया था विवेकानंद जी ने भी. फर्दर वी कैन से हियर, यहाँ पर कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं, लाइक आइडिया ऑफ ग्रेटर इंडिया. सो इफ यू आर थिंकिंग कि वी आर आप just highlighting this idea of Vishwa Guru only today, then you are wrong. Actually, this idea of Vishwa Guru, India has the potential to become Vishwa Guru. All right. This idea was floated by Swami Vivekanand. This idea को सबसे पहले किसने float किया था? Swami Vivekanand ने. All right. Swami Vivekanand ने इस idea को सबसे पहले फ्लोट करना शुरू किया था, बताना शुरू किया था इस आइडिया को. ओके, नाउ फर्दर व्हाट वी सी हियर, द आइडिया ऑफ ग्रेटर इंडिया इज आल्सो एसोसिएटेड हियर. यहीं पर एक आइडिया और आके एसोसिएट होता है, विच इज नोन एज द आइडिया ऑफ ग्रेटर इंडिया. ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस आइडिया ऑफ ग्रेटर इंडिया? क्या हम कहना क्या चाहते हैं इस आइडिया से? एक्चुअली ग्रेटर इंडिया means this is the area in Indian subcontinent. All right, this is area in Indian subcontinent. Indian subcontinent के अंदर में एक ऐसा ये एरिया है जहां पर you can see the influence of Indian culture. हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? We see here influence of Indian culture. Indian culture का, भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है वो हमें कई सारे एरियाज में दिखता है. All right. So अब कौन कौन से कंट्रीज पर? So इंडिया तो है ही, बियॉन्ड इंडिया यू कैन सी नेपाल. आप नेपाल को देख सकते हैं. यू कैन सी भूटान. ऑल राइट, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इवन बियॉन्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया. In Southeast Asia, you can see Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore. All right. In सारे countries में भी you can see the influence of the Indian culture, and this idea is known as the Greater India. And this idea of Greater India is a part of the India's vision, India's aspiration to become the Vishwa Guru. विश्व गुरु बनने का जो हमारा आइडिया है
उस आइडिया के साथ में दिस आइडिया ऑफ ग्रेटर इंडिया प्रॉपरली अलाइंस, जो कि पहले से ही चला आ रहा है। फाइन। नाउ नाउ लेट मी हाईलाइट द मेजर कंसर्न और चैलेंजेस। तो मेजर चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पर जो हमारे सामने आ सकते हैं? यू कैन यू कैन सी हियर दिस challenges: education and research deficit. All right, guys, here is a major problem in front of the India. इंडिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि R&D स्पेंडिंग जो है हमारा, वो जीडीपी का 1% से भी कम है। ऑल राइट, एंड दैट्स वाई इंडिया एक्सपीरियंसेस द ब्रेन ड्रेन। हम एक्सपीरियंस करते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ से ज्यादा लोग जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, और हमारे कंट्री में, इंडिया में पढ़ने के लिए जो लोग हैं वो आते हैं कम। फाइन, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ऐसे में जो लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस बात है कि वो वेल्थ भी लेकर के जा रहे हैं। जो वेल्थ क्रिएट करेंगे, जो एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, जो फी पे करेंगे, वो दैट फी विल बी पे to the foreign nations, right? Okay, so that's a problem. As well as whenever we see the condition of the Indian universities, all right, Indian universities का हम जब भी कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या है इंडियन यूनिवर्सिटीज का, ग्लोबल रैंकिंग में पोजीशन क्या है हम लोगों का, देन वी सी कि वीक ग्लोबल रैंकिंग्स, ग्लोबल जो रैंकिंग्स हैं वो बेहतर नहीं है हमारी। इवन आप अगर हम क्यूएस के अंदर में देखें, ऑल राइट, तो इंडियन जो यूनिवर्सिटीज हैं, कई बारी हम देखते हैं कि टॉप 100 में भी हमारी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी हमें दिखाई नहीं पड़ती। टॉप 50 में तो बहुत टफ, मतलब और भी टफ हो जाता है, और भी मुश्किल हो जाता है। दीज आर द थिंग्स। तो वी नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर in the education, and especially in the higher education, as well as providing a better infrastructure. So these are the things we need to care about. After this, democratic credibility is also very crucial thing here. अगर आप देखें, so in past years भारत में कई सारे जो आप इंटरनेशनल बॉडीज हैं, they highlighted some concern about the press freedom, judicial independence, all right, as well as moral authority. So this is our duty, this is the duty of the government of India, all right, कि इन सारे स्फीयर्स के अंदर में, इन सारे जोन्स के अंदर में, चाहे वो प्रेस फ्रीडम की बात हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हो, मोरल अथॉरिटी की बात हो, तो वहां पर एक भरोसा जगाने का जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के साथ साथ में, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सिविल सोसाइटी एज वेल, एंड डेफिनेटली वी कैन टेक द हेल्प ऑफ सब एनजीओज एज वेल। हम उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। फाइन, ओके। देन नेक्स्ट चैलेंज, जो अगला चैलेंज हमारे सामने आता है टू बिकम, इन बिकमिंग द विश्व गुरु बनने की राह में, and that is socio-economic inequality. All right, so under this socio-economic inequality, what we examine here, आप यहाँ पर देखेंगे, so rural areas are underdeveloped, all right, and the digital services and healthcare services, educational access, all these are the problems associated with the rural India, and अर्बन इंडिया डेफिनेटली, हाँ, बेटर है जो सर्विसेज हैं रादर देन रूरल इंडिया, दिस सर्विसेज आर बेटर इन द अर्बन इंडिया। तो एक ऐसा कंट्री जो कि इंटरनली ढेर सारी प्रॉब्लम्स और डिस्क्रिमिनेशंस को फेस कर रहा है, तो वो विश्व गुरु कैसे बन सकता है? दैट्स अनदर व्यू पॉइंट टू थिंक। आफ्टर दिस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन गैप, देन व्हाट वी सी इन इंडिया, AI ethics, cyber security, weak innovation, and ecosystems. All right. These are some other problems, some other issues associated. Actually, misuse of the pics available over the internet, right? As well as digital fraud, digital arrest. These are other concern
associated कि टेक्नोलॉजी बढ़ तो रही है, but ethics associated with the technology, ethical duty, responsibility associated with the technology, वो पीछे की तरफ जा रही है, वहां प्रॉब्लम्स है. तो वी नीड टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स एज वेल. देन innovation ecosystem. So we are pushing for the innovations, we are pushing for the startup ecosystem, but new ideas, जो ऐसे आइडियाज जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हमको लेकर के जाएं, ऑल्दो वी आर गेटिंग सक्सेस, बट दिस सक्सेस इज नॉट दैट मच इफेक्टिव, उतनी इफेक्टिव नहीं है. तो ये एक अगला चैलेंज रहता है. आफ्टर दिस, फॉरेन पॉलिसी डिलेमा. अंडर द फॉरेन पॉलिसी, सो फॉरेन पॉलिसी में दो चीजें हमारे सामने आती हैं. वन इज मोरल पोजिशनिंग, कि मोरालिटी जो कहती है उसको हम फॉलो करें, एज वेल एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी मेंटेन करते हुए, बिकॉज मैनी बिग पावर्स आर हियर, राइट. एंड डेफिनेटली जो बिग पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज को प्रभाव में लाना, उनको जो है अपने इम्पैक्ट में लाना, किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, वो तो बार्गेनिंग चलती रहती है. और उन सब के बीच में अपनी मोरल पोजिशनिंग को, मोरल स्टैंड को बना करके रखना, नेशनल इंटरेस्ट को भी सर्व करना. तो दीज आर द थिंग्स. ये जैसे जैसे इंडिया का जो ग्लोबल स्टेज के ऊपर में जैसे जैसे हम अब उभरते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ कंट्री ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया का आर नेबर चाइना, चाइना को बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगेगा, वो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स करेगा. ऑल राइट, तो फिर आप हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, हम कैसे उसको आंसर करेंगे, दीज आर द थिंग्स वी नीड टू सी. आफ्टर दिस, कल्चरल सॉफ्ट पावर वर्सेस पॉलिटिसाइजेशन. एक्चुअली दिस इज अ interesting challenge, one more interesting challenge in front of us. चैलेंज ये है कि अगर हमें अपने कल्चर को, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कि ऐसा ना हो जाए कि कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को हम कॉमोडिफाई कर दें, ऑल राइट, कि कॉमोडिटी की तरह दिखाना शुरू कर दें कि ये एक कॉमोडिटी की तरह हो गया. फाइन. तो ऐसे में मिसयूज ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी इज पॉसिबल. कमोडिटी की तरह हो जाना मतलब कि बाजार से उसको जोड़ देना. फाइन. कि बाजार के एक प्रोडक्ट की तरह कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को दिखाना. एंड डेफिनेटली अगर इस तरीके से शो करना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, देन दिस विल लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स. और इससे जो इम्पैक्ट है हमारे कल्चर का वो भी डाउन जाएगा. ओके, सो दीज आर सेवरल थिंग्स. आफ्टर दिस, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स. कुछ एक यहाँ पर इनिशिएटिव्स है कि इनिशिएटिव्स सपोर्टिंग विश्व गुरु विजन, विश्व गुरु विजन को सपोर्ट करने वाले जो इनिशिएटिव्स हैं, वो इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे. फॉर एग्जांपल, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS डिवीजन है, इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन है, IKS डिवीजन है. देन वी हैव G20 ग्लोबल साउथ लीडरशिप. ऑलराइट, G20 ग्लोबल साउथ लीडरशिप. एंड यहाँ से भी इंडिया अपने पोजीशन का यूज कर सकता है, as well as International Day of Yoga, वैक्सीन मैत्री. ऑल राइट, वैक्सीन मैत्री आप अगर देखें यहाँ पर तो कई सारे कंट्रीज को हम लोग वैक्सीन भी सप्लाई करते हैं. कोविड-19, ड्यूरिंग द कोविड-19 वी आल्सो ट्राई टू सप्लाई वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन टू मैनी नेशंस. ऑल राइट, ओके. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, सोलर अलायंस स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम, एंड वी आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू foreign students, especially from Africa and third world nations, as well as National Digital University, ICCR, MEA, Cultural Diplomacy, ISRO, and Mission Innovation 2.0. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ मिशंस हैं जहाँ पर हम अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर में, कि टैलेंट इंडिया के अंदर में आए. ऑल राइट, और यहाँ पर ये रिसर्च करें, यहाँ पर ये स्टडी करें. फाइन. और इंडिया का जो इकोसिस्टम है उसका बेनिफिट लें. राइट, सो दीज आर द इनिशिएटिव्स. बट दिस इज अ हाई टाइम. इतना करने के बाद में, इतना समझने के बाद में, वी नीड टू डू अ कंपैरिजन. एक कंपैरिजन तो बनता है यहाँ पर कि दुनिया भर में क्या चल रहा है. ऑल राइट, कंपैरेटिव ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं.
अलग अलग, क्योंकि सिर्फ हम तो अकेले हैं नहीं कि वी आर पुशिंग फॉर द ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन, ग्लोबल स्टेज पर जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए एफर्ट केवल हम तो अकेले कर नहीं रहे, many nations are there and they are also pushing for this identification at the global stage. So there is UK, we have United Kingdom, हमारे सामने कौन है? United Kingdom है, UK है, fine. So UK, what we see here, liberal political economy, all right, UK लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी यहाँ पर है। यूएसए में लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को प्रमोट करते हैं वो। चाइना की हम बात करते हैं, डिजिटल सोवरेनिटी की बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो हम एथिकल प्लुरलिज्म, सस्टेनेबिलिटी, सेंट्रिक लीडरशिप की हम लोग बात करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज आर यूएसपी, ये हमारी अपनी एक यूएसपी है जिसको हम दुनिया को दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। व्हाट मे बी द वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता, आगे की राह क्या हो सकती है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है यहाँ पर? देन देखिए, वी नीड टू इंक्रीज आर इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है नियर अबाउट 3 मोर देन और इक्वल टू 3% ऑफ जीडीपी करने का जरूरत है। ऑलराइट, इंक्लूसिव ग्रोथ में वी नीड टू एड विमेन, यूथ, रूरल, डिजिटल लिटरेसी, इन सबको जोड़ने की जरूरत है। वैल्यू डिप्लोमेसी, वैल्यू बेस्ड डिप्लोमेसी, दैट इज especially Gandhian ethics. Gandhian ethics add a value to the life, प्रैक्टिकल है। गांधीयन एथिक्स बहुत प्रैक्टिकल है, वो लाइफ में एक विजिबल चेंज लेकर के आते हैं। तो डेफिनेटली हम प्रमोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं गांधीयन एथिक्स को। देन सिविलाइजेशनल मॉडर्निटी, रादर देन हाईलाइटिंग दिस थिंग कि वी हैव अ ग्लोरियस पास्ट, ठीक है वो तो है हमारे पास में, but how this glorious past can help us in the present में हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? So aligning the science and tradition, साइंस और ट्रेडिशन को साथ में अलाइन करना, that will be very interesting thing and that will be very important thing as well. Fine. Then जो इंडिया के अंदर में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, हमें उनको भी स्ट्रेंथन करने का जरूरत रहेगा। दैट विल आल्सो हेल्प अस, वो भी हमारी हेल्प करेगा। ऑलराइट गाइज, सो दीज आर द थिंग्स with respect to the first topic, that is Vishwaguru vision explained. All right, now I am taking you forward, थोड़ा और आगे ले चलते हैं आप लोगों को, and that is next thing, women's labor and recognition gap. All right, तो महिलाओं का श्रम और रिकॉग्निशन गैप, किस तरीके से वो वर्क करती हैं और जो कार्य वो करती हैं उसको जो रिकॉग्निशन, जो पहचान मिलनी चाहिए वो पहचान नहीं मिलती है। फाइन, सो क्या क्या इश्यूज है यहाँ पर, लेट्स एग्जामिन, देखते हैं यहाँ पर इन सारी चीजों को। सो एस्पिरेंट्स, व्हाट वी सी हियर, आप यहाँ देखें, women's labor, especially unpaid care and domestic work, all right, remains grossly undercounted and undervalued despite being essential for economic and social functioning. अब यहाँ पर देखेंगे कि जो अगर इंडिया में भी हम बात करें और दुनिया की बात करें तो फ्रंट लेवल पर सबसे पहले, ठीक है, जो केयर गिवर है, कौन है? केयर गिवर, ऑल राइट, फ्रंट एंड पर केयर गिवर। सो इसमें नाम किसका आता है? फीमेल का, इसमें विमेन का ही नाम आता है, फीमेल का ही नाम आता है। ऑल राइट, ओके, नाउ व्हाट वी सी हियर, विमेन दे वर्क अलॉट, काम तो वो खूब कर रही होती हैं, बट द थिंग इज दिस कि इस सारे वर्क के बीच में उनका जो ये कंट्रीब्यूशन है, ऑल राइट, खास तौर पर डोमेस्टिक वर्क हो गया, अनपेड केयर है, एंड दिस गोज अंडर काउंटेड, ये ध्यान किसी का जाता ही नहीं है इस तरफ, दिस गोज अंडर वैल्यूड, ये अंडर वैल्यू होकर के निकलता है। ऑल राइट, डिस्पाइट बीइंग एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल फंक्शनिंग। अभी आप सोच करके देखिए, आप सिर्फ just you can take one example of Indian families. All right, if you examine one such Indian family, Indian house, and how
आर मदर्स, जो मदर्स हैं हमारे घरों में, ऑल राइट, कि दे आर द बैकबोन ऑफ द हाउस, ऑल राइट. Even if they are only housemakers, even if they are only homemakers, father is earning, all right, fine, but mother is making the house. If you just examine, if you just observe the daily housework done by the mother, all right, जो फीमेल्स हैं, जो होम मेकर्स हैं घरों में, जो डेली वो वर्क कर रही होती हैं घरों में सुबह से लेके, इफ father's office is at 8 a.m. or 9 a.m. all right, बच्चे हैं, उनको 7 a.m. स्कूल जाना है, तो हम देखते हैं कि जो फीमेल मेंबर है घर में, फीमेल हेड है घर में, उनका रूटीन स्टार्ट हो जाता है 5 a.m. इन द मॉर्निंग, ऑल राइट, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन टू राइज एंड लास्ट पर्सन टू गो ऑन द बेड, ऑल राइट. ये रूटीन रहता है फीमेल का, कि अगर 5 बजे वो उठ गई हैं तो रात में 10:30 11 बज रहे हैं, तब वो बेड पर जाती हैं, वो सोने के लिए जाती हैं. समझे आप कि इन सब में वर्क सारे कर रहे हैं, राइट, बट ये जो पूरी फैमिली चल रही है, इसको चलाने में एक बड़ा रोल किसका है? रोल ऑफ दैट फीमेल मेंबर, ऑल राइट. सोसाइटी, family is the part of society, as well as while doing all these functions, if she is not earning money directly, अगर वो directly earn नहीं कर रही है, तो she is saving money, वो कम से कम सेव तो कर ही रही है. All right, now एस्पिरेंट्स, आई हैव सम डिटेल्स, मेरे पास कुछ यहाँ डिटेल्स है, कुछ डेटा है आप लोगों को बताने के लिए, कुछ रिपोर्ट्स हैं डिस्कस करने के लिए. सो यू कैन सी हियर the UN report, United Nations report 2023, and this report highlights women spend 2.8 times more hours than men on unpaid work globally. All right. तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दिस इज द फैक्ट अराउंड द वर्ल्ड. दुनिया भर में अगर आप देखें तो लगभग हमें यही ट्रेंड देखने को मिलता है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट अगर आप देखें यहाँ पर, तो इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये 40% तक रेज हो सकता है अप टू 2030, ऑल राइट. एंड अगर ये हम 40% तक कर पाए इसको, देन दिस विल ऐड नियर अबाउट 250 बिलियन टू द जीडीपी. इंडिया के जीडीपी में 250 बिलियन ऐड कर सकता है, 250 बिलियन डॉलर ऐड हो सकते हैं इंडिया की जीडीपी के अंदर में. दिस अमाउंट इज ह्यूज, ऑल राइट. देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रिपोर्ट हो गया, यूएन रिपोर्ट, ओके, आई हाइलाइटेड द ILO estimate. Now let's examine some reports presented by the national institutions. For example, you can see here ministry report submitted by the Ministry of Statistics and Program Implementation, Niti Aayog and SBI. Then we have 3 reports. Here we examined 2 reports, then 3 more reports. 3 और रिपोर्ट है हमारे सामने यहाँ पर. Now you can see here under this report presented by the Military of Statistics and Program Implementation, what we see कि एक महिला, a woman, all right, a woman spends, you can see here 300 304 and 97, all right. वुमन, अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो दिन में लिए अबाउट 314 मिनट्स पर डे का उनका वर्क है, हाउस होल्ड वर्क है. मेल मेंबर की बात करते हैं तो 97 मिनट्स पर डे का उनका हाउस होल्ड वर्क हमें दिखाई पड़ता है. सो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि 82% विमेन एंगेज इन अनपेड वर्क. 82% विमेन इंडिया के अंदर में ऐसी हैं, 82% विमेन they are engaged in the unpaid work, all right, unpaid work, डेली जो हाउस होल्ड वर्क है वहां पर. नीति आयोग की रिपोर्ट आती है 2025 के लिए. सो नीति आयोग हाईलाइटेड अनपेड वर्क 63% ऑफ विमेन्स टोटल वर्क टाइम. तो एक फीमेल अपने जितना भी वर्क कर रही है उसके, मान लीजिए शी इज डूइंग 100% वर्क,
So out of this 100%, 63% work is unpaid. 63% वर्क क्या है? This is unpaid. All right, ये unpaid है. Further, what we see here, SBI का report है. SBI says in its report that unpaid work valued at SBI जो unpaid work को value करता है, that is 22.7 lakh crore. तो आप समझे कि 22.7 lakh crore, that is near about 7.5% of 7.5% of India's GDP. So these numbers are overwhelming. All right, these numbers are definitely overwhelming numbers. If we start counting the female participation, if we promote female participation, उसको promote करना हम शुरू करें, then this can bring a major change. ये एक बड़ा change ला सकता है. Fine. As well as aspirants, कुछ और points भी हैं यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं. For example, what are the key changes or a key concern or structural issues associated? कौन कौन से concern है, structural issues हैं which are associated here, जो कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं, associated हैं. Okay, so number one, the first thing we examine here, that is invisibility of women's work. All right, क्या आता है हमारे सामने? invisibility invisibility of women's work. All right, so what do we mean by, क्या मीनिंग हुआ, क्या कहने का मतलब क्या हुआ इसका? Emotional and mental labor is excluded from GDP and policy. All right, so जो हमारी GDP है, the way we calculate our GDP, all right, under this emotional and mental labor is excluded. इसको हम ऐड करते ही नहीं हैं in India's GDP calculation. When we see the GDP calculation in many countries, especially in the West, right? So they try to figure out this thing, that emotional contribution, mental labor, emotional labor, this is also counted over there. All right. Then further we see ideological devaluation. All right. Like in India, we focus on the numbers, GDP centric growth, जो कि ऐसी जो है economies where they focus only on the GDP numbers के ऊपर में फोकस कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो फिजिकल आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन, this is part of the status of women, it is the part of the social infrastructure. So focus on physical, all right, over सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो जीडीपी सेंट्रिक नंबर्स में ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, दैट्स व्हाई ये इग्नोर हो जाती हैं चीजें. देन जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर. ऑल राइट, सो दिस इज द कॉमन परसेप्शन, कॉमन स्टिग्मा प्रेजेंट इन द सोसाइटी, एंड इट गोज लाइक दिस. इसमें रहता क्या है, दिखता क्या है हमको कि production is associated with the male and reproduction is associated with the female. That means the household responsibility belongs to a female, right? And जो प्रोडक्टिव फंक्शंस हैं फैमिली के अंदर में, राइट, अर्निंग मनी स्पेशली, ऑलराइट, these things are associated with the male members. This is one इम्पैक्ट ऑफ द पैट्रियार्कल थिंकिंग. पैट्रियार्की को भी ये इम्पैक्ट दिखाता है, उसका इम्पैक्ट को दिखाता है ओवर द सोसाइटी. देन एस्पिरेंट्स, these are the things, these are the structural issues we are facing with respect to the females invisibility, ideological devaluation and gendered division of labor. But सारे कंट्रीज में एक जैसी बातें नहीं है. वी हैव सर्टेन अदर नेशंस, हमारे सामने कुछ और भी कंट्रीज हैं, और भी नेशंस हैं, वेयर वी सी द पिक्चर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, सीन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. हाउ? आप यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव बोलिविया, हमारे पास में वी हैव एग्जाम्पल फ्रॉम बोलिविया. सो बोलिविया, कॉन्स्टिट्यूशन इन बोलिविया रिकॉग्नाइजेस डोमेस्टिक वर्क एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. Trinidad Tobago, counting
Unremunerated Work Act 1996, then Argentina, pension credits for unpaid care work and emotional labor remains largely बट अगर आप यहाँ पर देखें इन कंट्रीज को छोड़ दें, बोलीविया, ट्रिनिडाद टोबैगो एंड अर्जेंटीना, तो लार्जली जो मैंने बताया था कि इमोशनल लेबर अभी भी जो जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं उनसे बाहर ही दिखता है. ऑलराइट, सो this is about these two topics, Vishwaguru and women's labor and recognition. After this, aspirants, we talked about so much about US action in Venezuela and probable action in Greenland. All right, but while going through all these things, all these actions, right, so I got to know about some more things. कुछ और चीजें मेरे सामने यहाँ पर निकली और जिनको मुझे लगा कि मुझे एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहिए. फाइन, सो व्हाट इज दिस, क्या है यहाँ पर कि what is the legal basis of the US action in Venezuela? Whatever US did in Venezuela, is there any legal ground? What is the legality of this action? All right, so let's examine this, only this angle, legal angle. All right, we all know very well the US action in Venezuela is known as Operation Absolute Resolve. क्या नाम दिया हमने इसको? इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व. But this US intervention in the Venezuela definitely undermines the sovereignty of the nations, all right, as well as this is a serious breach of the international law, all right, as well as the principle of non-intervention and UN based charter, all right, violation of the प्रिंसिपल ऑफ द यूएन चार्टर, इन सब को वायोलेट करते हुए दिखता है दिस एक्शन डन बाय द अमेरिका. ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंड हियर guys, listen up. In general what happens here, डोमेस्टिक लीगल क्लेम्स, यूएस का जो जस्टिफिकेशन है अगर आप उसको देखें तो व्हाट अमेरिका इज सेइंग, अमेरिका यहाँ पर क्या कह रहा है, आप उसको देखें, एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या कहता है उसको भी हम देखेंगे. राइट, एंड इन बिटवीन इंडिया के सामने क्या डिलेमा है, आई विल बी हाईलाइटिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स हियर. फाइन, सो अमेरिका में according to the American Constitution, all right, Congress declares war. Congress जो वहां की पार्लियामेंट है वो वॉर को डिक्लेयर करती है, नंबर वन. देन प्रेसिडेंट इज कमांडर इन चीफ. ओके फाइन, सो अब जो ये एक्शन यहाँ पर हुआ है इसमें अमेरिका की जो कांग्रेस है उसका क्या रोल है वो एसेस किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी जो देखने से दिख रहा है वो ये लग रहा है कि इसमें तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर सारी चीजें हो गई एकदम से. फर्दर आप यहां देखें, प्रेसिडेंट्स हैव हिस्टोरिकली यूज्ड लिमिटेड फोर्स. प्रेसिडेंट्स ने थोड़ा बहुत फोर्स यूज किया है नेशनल इंटरेस्ट को बताते हुए, बात करते हुए, ऑलराइट, विदाउट अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस. कांग्रेस के अप्रूवल के बिना उन्होंने थोड़ा बहुत ये किया है. बट अब यहां पर इन दिस एक्शन रोल ऑफ द कांग्रेस ये एसेस किया जाएगा, तो ये एक इंटरनल अफेयर भी, एक इंटरनल मैटर भी रहेगा अमेरिका का. इन पास्ट इन 1989 पनामा में कुछ एक्शन किया था अमेरिका ने, ऑलराइट, एज वेल एज अमेरिका डिड सम एक्शन इन 2022 एज वेल, होंडुरास के रिस्पेक्ट में था. एंड द यूज ऑफ द मोनरो डॉक्ट्रिन, ऑलराइट, सो वेस्टर्न हेमिस्फीयर in 1823 America highlighted the Monroe, America presented this Monroe Doctrine, then American president, all right, and he said the Western Hemisphere is the area of influence of America, all right, and recent action show return to hemispheric exceptionalism की अलग अलग हेमिस्फीयर्स के अंदर में कौन कितना पावरफुल है, कौन कहाँ पर कंट्रोल करेगा चीजों को, तो ये इसी को दिखा रहा है, उसके तरफ एक रिटर्न को दिखा रहा है. देन इसी जगह पर जो स्कॉलर्स हैं दे आर इंटीग्रेटिंग द आइडियाज गिवन बाय द डोनाल्ड ट्रंप एंड मोनरो डॉक्ट्रिन, मोनरो टू डुनरो, एंड यहीं पर एक आइडिया निकलता है, आइडिया आता है मोनरो टू डुनरो.
All right, Monroe to Donroe. So what is Donroe? Donroe is the group of the ideas presented by the Donald Trump. और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बिलीव्स, ऑल्दो अगर आप देखें तो दिस इज ऑल्सो मेजर शिफ्ट in the policy and the principles presented by the Donald Trump himself. Because when we see Donald Trump before this term, Donald Trump used to say that I am against war, I will end the wars forever. मैं हमेशा के लिए जो युद्ध हैं, वॉर्स हैं, उन्हें खत्म कर दूंगा. ऑल राइट, बट जिस तरीके से वो वॉर्स को प्रोवोक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कंफ्लिक्ट जोन्स को एक्सटेंड कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर में, दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. सो हम लोग देख क्या रहे हैं, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग अंडर द डोनरो आइडियाज, डोनरो एलिमेंट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट अमेरिका इज इंक्रीजिंग द स्फीयर ऑफ द इन्फ्लुएंस, जो उसका प्रभाव क्षेत्र है वो उसको लगातार बढ़ाते हुए दिखा रहा है. देन माइग्रेशन, एनर्जी, नारकोटिक्स, इन सब जगहों पर वो अपने आप को सेव करना चाहता है. एंड शिफ्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी प्रमोशन टू द स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल. बिफोर दिस व्हाट वी यूज्ड टू सी, अमेरिका प्रेजेंटेड हर सेल्फ, इसने हमेशा अपने आप को प्रो डेमोक्रेसी शो किया है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. बट अभी अगर आप देखें द ट्रेंड ऑफ अमेरिका, तो वो डेमोक्रेसी से ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है कि मुझे अलग अलग एरियाज में कंट्रोल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहिए. ऑलराइट, तो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. ये बिल्कुल यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है उसके लिए एक चिंता का विषय हो जाता है. व्हाट इज द इंटरनेशनल लॉ फ्रेमवर्क? इंटरनेशनल लॉ फ्रेमवर्क यहाँ पर क्या कहता है विद रिस्पेक्ट टू what happened in Venezuela? You can see here Caribbean Sea, Venezuela, Colombia is here, Brazil is here, Caracas, right, capital of the Venezuela. All right, okay, so aspirants, you can see, hold on, you can see here, wait, okay, now you can see here sovereignty and use of force. All right, so what America is following, what America is doing here, sovereignty and use of the force. And hold on, just a while, just a while. Yes, you can see here international law framework. Under this international law framework, there is UN Charter. We have UN Charter. All right, we have UNSC, United Nations Security Council, but there is a catch. United Nations Security Council and America is a permanent member of UNSC and America carries the veto power. अमेरिका के पास वीटो पावर है. सो अभी इन यूएनएससी अमेरिका के अगेंस्ट में कोई भी प्रपोजल पास कैसे होगा, अमेरिका तो वीटो कर देगा उसको. एज वेल एज यूएन चार्टर 2/4 प्रोहिबिट्स यूज ऑफ द फोर्स. एज वेल एज अगर हम देखें तो यूएनएससी आर्टिकल 51 एज वेल एज यूएन चार्टर 2/4, ऑल राइट, दोनों में ही हम देखते हैं कि आप ना तो अमेरिका के लिए यहाँ पर वेनेजुएला में एंट्री लेने के लिए जो उसने फोर्स यूज किया, कोई ग्राउंड मौजूद हमें नहीं दिखता है, क्योंकि आप वेनेजुएला वाज नो थ्रेट टू अमेरिका. वेनेजुएला अमेरिका के लिए कोई थ्रेट है ही नहीं. नो वॉर वाज गोइंग ऑन, ठीक है. लाइक अमेरिका इज सेइंग कि आई डिड दिस इन सेल्फ डिफेंस. ऑल राइट, कि नारकोटिक्स को प्रमोट कर रहे थे तो हमने अमेरिका में जो ड्रग कार्टेल को बढ़ावा दे रहा था निकोलस मादुरो, इसमें कोई प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए तभी ये चीजें प्रूव होंगी. बट वी सी देयर इज लैक ऑफ एविडेंस, यहाँ पर प्रॉपर एविडेंसेस आर एब्सेंट. ऑल राइट, देन फर्दर व्हाट वी सी हियर, फर्दर व्हाट वी एग्जामिन हियर, आईसीजे की हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, सॉरी, इम्यूनिटी टू द सिटिंग हेड्स. जो सिटिंग हेड्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर में, उनके पास एक इम्यूनिटी रेशियो ना परसोने, दैट इज आप सिटिंग हेड्स को आप पूर्ण इम्यूनिटी, कंप्लीट इम्यूनिटी रहती है, और इनको इस तरीके से अरेस्ट करना, दिस इज द वायोलेशन ऑफ द सोवर्निटी. ऑल राइट,
तो ये आप सोवरेन इक्वालिटी की, हर एक कंट्री छोटा हो या बड़ा, उनकी सोवरेनिटी बराबर है। ऐसा नहीं है कि माइट इज राइट, जो पावरफुल है उसने कुछ भी किया तो वो ठीक है। कोई कंट्री वीक है, कमजोर है, उसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, ऑलराइट, तो फिर आप उसको, कोई भी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, आर्म ज्यादा है, वेपन ज्यादा है, तो वो आप अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। तो दिस एक्शन ऑफ अमेरिका विल स्टार्ट आर्मामेंट रेस, हथियारों की एक दौड़ यहाँ पर शुरू हो जाएगी अक्रॉस द ग्लोब, ऑलराइट, ओके, विच विल क्रिएट another set of problems. Now now what we see aspirants, state responsibility, all right, अब स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में हम यहाँ पर हो सकता है कि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में इन्वोक आईसीजे एंड रीजनल मैकेनिज्म्स की तरफ जाए वेनेजुएला, तो वो देखने वाली बात होगी फ्यूचर में। एंड इरोजन ऑफ द ग्लोबल लीगल ऑर्डर, वट एवर अमेरिका डिड हियर, इससे जो ग्लोबल लीगल ऑर्डर है, लाइक सेलेक्टिव लीगैलिटी अंडरमाइंस रूल बेस्ड ऑर्डर। देखिए, अगर कोई रूल है तो वो सबके लिए है। इट इज नॉट द केस कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं दे विल एक्सरसाइज डिफरेंट रूल्स, जो वीक कंट्रीज हैं उनके लिए अलग रूल्स होंगे, सबके लिए रूल्स तो बराबर ही रखने पड़ेंगे। एज वेल एज रिस्क ऑफ माइट ओवर लॉ, अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर जिसकी पावर ज्यादा है वो अपनी मनमर्जी करेंगे, रूल बेस्ड ऑर्डर से लोगों का भरोसा उठते हुए चला जाएगा। देन अनदर थिंग वी सी हियर, सेट्स डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर चाइना, रशिया एंड अदर्स। अब इस तरह के एक्शन से जो दूसरे कंट्रीज लाइक चाइना है, रशिया है, ऑलराइट, सो चाइना में टेक सिमिलर एक्शन विद रिस्पेक्ट टू ताइवान। चाइना ताइवान में आप ऐसे एक्शन ले सकता है और कोई भी कंट्री कुछ नहीं कर पाएगा, फाइन। रशिया यूक्रेन में ऐसे एक्शन कर सकता है। आप समझे इस बात को कि अमेरिका का जो ये एक्शन है, ये यहाँ पर जो इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर है उसके लिए दिस इज अ थ्रेट, उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग है ये, फाइन। देन व्हाट इज इंडियाज स्टैंड, हमारा स्टैंड क्या है यहाँ पर, आप देखें, काइंडली फोकस हियर। So, aspirants, principal versus president. All right. So, India's commitment to sovereignty could be endangered in a permissive global order. तो एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां पर पावर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में वी आर पुशिंग फॉर द सोवर्निटी और commitment to sovereignty in sovereign equality, all right, so this may be endangered, ये खतरे में आ सकता है, जोखिम में आ सकता है। फर्दर आप अमेरिका के साथ में जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, दिस टाइज आर इसेंशियल, दिस टाइज आर vital, but if American foreign policy will change like this, अगर अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इस तरीके से कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा और इतना वोलेटाइल रहेगा, then definitely it will cause tension for the nations like India, as well as we all know very well कि अमेरिका is marginalizing, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप अगेन एंड अगेन ट्राइंग टू मार्जिनलाइज इंडिया, इंडिया को लगातार मार्जिनलाइज करने का वो एफर्ट कर ही रहे हैं। टैरिफ्स की बात हो, ऑलराइट, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे उनके स्टेटमेंट्स हो, अभी रिसेंट में उनके स्टेटमेंट दिए गए हो, ऑलराइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन, ऑलराइट, ही इज बिकमिंग अप और इज डूइंग a kind of humiliation with respect to India, right? And this will impact the relation of India and America. After this, we have certain other aspect associated here, that is global South leadership. All right. So if all these things will happen, like Venezuela में जो कुछ भी हुआ, Venezuela is the part of थर्ड वर्ल्ड का पार्ट है, एंड थर्ड वर्ल्ड जिसको हम ग्लोबल साउथ के साथ में जोड़ते हैं, एंड इंडिया एस्पायर्स टू बिकम द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। अगर हम इस बात को एस्पायर करते हैं, ग्लोबल साउथ को हम लीड करेंगे, ऑलराइट, सो अब वट एवर इज हैपनिंग इन दीज कंट्रीज, हम शांत नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रह सकते, हमें बोलना पड़ेगा, अपनी बात उठानी पड़ेगी यहाँ पर, ऑलराइट, सो दीज आर द थिंग्स एस्पिरेंट्स, फाइन, ओके।
आफ्टर दिस व्हाट मे बी द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकल सकता है यहाँ पे? द यूएस इंटरवेंशन violates Article 2 by 4 and 51 of the UN Charter, head of the state immunity and sovereign equality, and no existing legal doctrine legitimizes such action. तो अभी कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो इस एक्शन को लेजिटिमाइज कर दे. ऑल राइट, एंड स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक द आईसीजे इज एसेंशियल. तो ऐसे में अगर अमेरिका का इस एक्शन के अगेंस्ट में बाकी कंट्रीज यहाँ पर सामने नहीं आए, सो दिस विल डेफिनेटली विल सेट अ वेरी वेरी रॉन्ग एग्जांपल. फाइन. और दुनिया में जो रूल बेस्ड ऑर्डर है उस रूल बेस्ड ऑर्डर को डेफिनेटली रिप्लेस करने की कोशिशें होंगी माइट और पावर बेस्ड ऑर्डर से. राइट, देन दिस विल पुट द ग्लोबल पीस इन डेंजर. दुनिया में जो शांति है वो फिर इस वजह से खतरे की तरफ जाएगी, खतरे में डलेगी. ऑल राइट गाइज, आफ्टर दिस आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलते हैं आपको यहाँ से. एंड द टॉपिक इज, आप यहाँ देखें, यू कैन सी हियर, द टॉपिक इज इंडियाज सी फूड, इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट बूस्ट. ऑल राइट, सो आप विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड the population is growing as well as food security is a major point of concern. एक major concern का एक मुद्दा रहता है फूड सिक्योरिटी हमारे सामने. ऐसे में आप ये न्यूज आना कि इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट इज ग्रोइंग, इट्स अ गुड न्यूज. ये निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है. ओके, सो व्हाट इज द रिलीवेंसी, इसकी रिलीवेंसी क्या है? व्हाट मे बी द रोल ऑफ बिहार, बिहार का रोल यहाँ पर क्या हो सकता है? राइट, सो आई एम गोइंग टू थ्रो लाइट ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स. इन सब चीजों पर हम यहाँ पर बात करेंगे. ऑल राइट, वेट अ व्हाइल. फाइन. सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड पर देख सकते हैं यहाँ पर, we have certain details here. India's marine product exports grow 16% in value and 12% in volume. वैल्यू की बात करें, अमाउंट की बात करें तो ऑल राइट 16%, और वॉल्यूम की बात करें तो 12% अप्रैल अक्टूबर FY 25-26 compared to the same period last year. All right, and now export rose to $4.87 billion from $4.19 billion. Growth driven by market diversification. वियतनाम, बेल्जियम, मलेशिया, जर्मनी, चाइना, इवन चाइना को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिशरीज इंडिया से. जो सी फूड है, वी आर एक्सपोर्टिंग द सी फूड टू द वी आर एक्सपोर्टिंग द सी फूड टू द China as well. China as well. All right. China as well. All right. So kindly see here. यहाँ पर आप देखिए. Please focus. So despite decline in the US market, we all know very well, America put a lot of pressure and tariff with regard to India. अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ लगा रखे हैं देश के ऊपर में, इंडिया के ऊपर में. All right, and because of these tariffs, इन tariffs की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही है, but let me highlight this thing as well, aspirants. Despite decline in the US market, it remains the largest destination. इन सब के बावजूद ये जो है आप एक बड़ा डेस्टिनेशन रहता है अमेरिका का जो मार्केट है वो इंडिया के लिए. एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश एंड एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर एंड अ लीडिंग श्रिम्प एक्सपोर्ट. दीज आर सम फैक्ट्स. ये सब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर जिस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. एंड अंडर द फिश प्रोडक्शन, ऑल राइट, डेफिनेटली आप बिहार के लिए काफी सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं.
एक्वाकल्चर में भी बिहार के लिए काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। ऑल राइट एस्पिरेंट्स, नाउ यू कैन सी हियर रीजंस क्या है, क्या की रीजंस रहे ये एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने के पीछे में। सो नंबर वन, राइजिंग ग्लोबल डिमांड। एक तो ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल लेवल पर डिमांड ऑफ सी फूड इज इंक्रीजिंग because of this seafood is protein rich and low fat. Because of this in America, European Union, Japan, China, Southeast Asia, and especially shrimp की अगर हम बात करते हैं, the shrimp remains the top export item. All right, as well as rather than exporting seafood to only some countries, we are diversifying our market, market को diversify कर रहे हैं, and we are expanding our market to the वेस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ईस्ट एशिया, इन सब कंट्रीज की तरफ हम अपना मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, विच इज हेल्पिंग अस। एज वेल एज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट, गवर्नमेंट भी यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। लाइक वी हैव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वी हैव पीएम एमएसवाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। All right, so here what we see: harbor, cold chain, then processing units, sustainable aquaculture promotion, all these aspects are here, and government is helping these bodies, right? And a cold chain, खास तौर पर प्रोसेसिंग यूनिट्स को सपोर्ट करके गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ गुड रोल हियर, रोल ऑफ द फैसिलिटेटर। ऑल राइट, as well as quality and traceability, fine. So government at the same time is trying to maintain and providing a training to these producers, जो producers हैं यहाँ पे, government is providing training to these producers so that they can comply with the एक्सपोर्ट नॉर्म्स, कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म के साथ में वो नॉर्म को मेंटेन करते हुए चले आगे, सो दैट आप यूएस का जो अमेरिकन मार्केट है, जो यूरोपियन मार्केट है, वहां से अननेसेसरीली कोई हमारे ऊपर में वहां से बैन वगैरह हम अट्रैक्ट ना करें। ऑल राइट, एज वेल एज improved traceability systems, alignment with international food standards, these are the things which we are following in India. Then growth in aquaculture, all right. So expansion of shrimp farming, India के अंदर में shrimp farming को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, right? And shift from capture to culture fisheries, this is very interesting thing, all right. Shift from capture to culture, what is the meaning of this? Actually समंदर में जो है सी फूड वो तो ठीक है कि वो जो नॉर्मली जो ग्रो हो रहा है उसको आपने नेट्स डाले, वहां से कैप्चर किया, फिर उसको आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया। और उसके तुलना में नाउ वी आर पुशिंग फॉर द प्रोडक्शन, हम कल्चर प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं कि आप एक्वाकल्चर को जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर में इसको प्रोड्यूस करके फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाए। नाउ वी आर पुशिंग फॉर दीज थिंग्स, ऑलराइट। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? सिंपल, आप गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, एक तो फॉरेन करेंसी आना है हमारे पास में, एंड सपोर्टिंग द एम्प्लॉयमेंट, मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स, जो कि एग्रीकल्चर के बाद में अगर हम देखें सेकेंड नंबर पर हमारा जो सी फूड है, इन्हीं में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, एज वेल एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सेफ्टी वो भी रहेगा, एंड दिस इज अ पिलर ऑफ द ब्लू इकोनॉमी, राइट? बट डिस्पाइट दिस इंपॉर्टेंस वी हैव सर्टेन चैलेंजेस एज वेल, हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चैलेंज इज लो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, ऑल राइट, एज वेल एज हाई टैरिफ एंड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे में हाई टैरिफ एंड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, कॉस्ट अप चला जाता है। देन ओवर फिशिंग एंड क्लाइमेट चेंज, राइट, सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। वीक कोल्ड चेन एंड, ठीक है, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज को बेटर कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट दैट मच स्ट्रेंथफुल, वो उतनी स्ट्रेंथफुल, उतनी मजबूत नहीं है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। एंड फ्रैगमेंटेड पॉलिसीज, पॉलिसीज जो है आप उनका अपना
इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं। और या आप ऐसे कह लें कि डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट पॉलिसीज, सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, देयर इज नो इंटीग्रेसी। सो इंटीग्रेटेड जितनी भी पॉलिसीज इंटीग्रेटेड होंगे उनका इम्पैक्ट उतना बेहतर आएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर एब्सेंट दिखाई पड़ती हैं कुछ कुछ। दीज आर सम challenges we need to address after this. Next thing will be, next topic, next topic will be uh, much awaited much awaited topic, census 2027 key significance. All right, so government of India, now we are moving for the 16th census finally. कोविड ईयर्स के टाइम पर हमारा सेंसस डिले हुआ एंड scholars criticized government for on many occasions for this delay, कि कई सारे इवन हमसे पिछड़े हुए कंट्रीज ने with very less resources they completed the census. हम इलेक्शंस लगातार करवाते जा रहे थे, कोविड के टाइम पर भी हमने इलेक्शंस करवाए, बट वी डिलेड सेंसस, हम सेंसस को डिले करते चले गए अपना। ऑल राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। एंड नाउ फाइनली गवर्नमेंट एग्रीड कि ठीक है हम सेंसस कराने जा रहे हैं। एंड 2027 के लिए जो फर्स्ट फेज है उसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ। ऑल राइट, so which ministry is responsible for the census? So you must be aware, Ministry of Home Affairs. Always remember, Ministry of Home Affairs is responsible for the census, as well as this will be the first fully digital census. This will be the first fully digital census. All right, and under this you need to know what is census. census है क्या, census क्या है, पहले तो आप इस बात को समझे। all right, just a while, wait, fine, ठीक है, ठीक है। all right, so we need to know what is census, right? Census is the systematic collection, compilation, and analysis of population data of a country. So, what we have here, three things: collection, compilation, and analysis of population data of a country. This is known as census. All right. When we see historical accounts associated with census, census के साथ में जुड़े हुए जो आप हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, अगर इनकी हम बात करनी शुरू करें, then we have Kautilya's Arthashastra. And in Kautilya's Arthashastra, we see mention that under the Mauryan administration, there was a rule that is a registration of birth and death, कि जो birth है death है उनका registration वहां पर किया जा रहा था। फाइन, सो ये एक किस्म का एफर्ट हो सकता है कि जिसके अंडर में आप यहाँ पर जो व्हाट वी सी व्हाट वी कैन से कि लोगों का जो नंबर है पॉपुलेशन के बारे में एक आइडिया रखा जा रहा होगा, तो वो एक एफर्ट हो सकता है अंडर द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, देन वी हैव अकबर्स आईने अकबरी। तो देखो टेक्निकली तो हम यहाँ पर आप ये जो कौटिल्या है एंड आईने अकबरी है इनको मॉडर्न सेंसस से एसोसिएट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा बोल दिया यहाँ पर कि बोथ वर लाइक मॉडर्न सेंसस, कि दोनों मॉडर्न सेंसस के जैसे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ऑल राइट, बट हाँ, आप मॉडर्न सेंसस के बारे में थोड़ा सा उससे जोड़ करके या उसके जो अर्ली बिगिनिंग है कि वो आइडिया था कि नहीं था, इस तरीके से इसको जोड़ करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल राइट, दीज आर द थिंग्स ओनली हियर। एंड कि वॉर के लिए, रिसोर्सेस के लिए डेटा मेंटेन किया जा रहा होगा मिडिवल में, एंशियंट में, उसके पहले। these these are some developments here. After this, when we examine the modern synchronous census, हम जब प्रेजेंट में बात करते हैं, मॉडर्न सेंसस की बात करते हैं, all right, so Mr. W.C. Plowden, all right, Mr. Plowden was the first census commissioner of India, all right, and it was 1872,
Yes, not 81, it was 72. And when Viceroy of India was Mayo, Viceroy of India कौन था यहाँ पर? Mayo था. और यहाँ पर एक एफर्ट होता है, एक प्रयास होता है कि सेंसस जनगणना करवाई जाएगी भारत में, बट दिस सेंसस वाज इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट हुई नहीं. आफ्टर दिस आप इन 1881, 1881 when Ripon was working as Viceroy of India, इंडिया के वायसराय के तौर पर जब रिपन वर्क कर रहा था, देन रिपन ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि सेंसस होना चाहिए, एंड सेंसस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया गया, एंड द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज डन इन द ईयर 1881. ऑल राइट, दिस इज हाउ वी सी द स्टार्ट ऑफ द सेंसस. यहां से हम प्रॉपर सेंसस का स्टार्टिंग 1881 से देखते हैं. ओके, आफ्टर दिस what is the legal and constitutional framework? ये सब बहुत फंडामेंटल थिंग्स हैं, लाइक मिनिस्ट्री, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, फेजेस. ऑल राइट, ये सब वो सब पता होना चाहिए आपको. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? ओके, बिकॉज जब आप पोस्टिंग में आते हैं तो फिर ग्राउंड लेवल पर आपको इन सब ऑफिसर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ नाउ काइंडली फोकस हियर एस्पिरेंट्स. सो सेंसस इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट. किसका पार्ट है सेंसस? सेंसस आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. वी हैव थ्री लिस्ट्स, ऑल राइट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ऑल राइट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो तीन लिस्ट है हमारे पास में, डिवीजन ऑफ पावर है. एंड दिस इज गाइडेड बाय द और गवर्न्ड बाय द सेंसस एक्ट 1948. ऑल राइट, यूनियन लिस्ट वी ऑल नो वेरी वेल, पार्ट ऑफ सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल का पार्ट रहती है वो. ओके, एंड गवर्नमेंट टू कंडक्ट द सेंसस एंड अपॉइंट अ सेंसस कमिश्नर. बजट रखा है नियर अबाउट 11,718 CR का बजट रखा हुआ है. एंड कास्ट इनुमरेशन, कास्ट सेंसस इज ऑल्सो एडेड. कास्ट सेंसस भी यहाँ पर की जाएगी, जो कि 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था. 1931 के बाद से अब कास्ट सेंसस यहाँ पर ऐड किया जाएगा, वो भी यहाँ पर होगा. ओके, होगी, सॉरी. नाउ व्हाट इज द टाइमलाइन? तो फैक्ट है यहाँ पर, अक्टूबर 1 2026, 1 अक्टूबर 2026 स्नो बाउंड एरियाज के लिए शुरू होगा, एंड मार्च 1 2027 से रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये सेंसस का वर्क शुरू होगा. ऑलराइट, टू फेजेस हैं. सबसे पहले हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस. पहले तो घरों को लिस्ट किया जाएगा, घर कितने हैं. ऑलराइट, एंड conducted in 2026. It records types of structure, घर कैसे हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, ओनरशिप, मालिक कौन है घर का, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, कुकिंग फ्यूल. ऑलराइट, ये सबकी डिटेलिंग यहाँ पर रखी जाएगी, जो फंडामेंटल्स है. अब देखो, आप यहाँ पर देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है. आप देखो कि this will provide the information to government about availability of drinking water, electricity, toilets, cooking fuel. अब you can associate, you can connect multiple schemes with this, like प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑल राइट, स्वच्छ भारत अभियान. आप इनको कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं. एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन के अगर आप यहाँ देखें, कुकिंग फ्यूल क्या है आपके पास में, तो वी हैव पीएम उज्ज्वला स्कीम. तो अब कितने लोग हैं जिनके पास में दोज हु हैव द क्लीन कुकिंग फ्यूल, राइट, हाउस होल्ड एसेट्स. आप समझ रहे हैं यहाँ से? दैट्स व्हाई दिस सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई एक्सपर्ट्स वर हाईलाइटिंग सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब सेंसस होगा तो हमारे पास कम से कम हर 10 साल में डेटा तो आता है कि हमारे लोगों के पास में क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी पॉपुलेशन है, किस ग्रुप में कितने लोग हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन रिकैलिब्रेट आवर पॉलिसीज. ऑलराइट, otherwise fiscal planning, monetary policies, everything will be, it is like कि आप अंधेरे में जा रहे हो. ऑल राइट, ठीक है, डिले हुआ है बट फिर भी प्रोसेस शुरू हो रहा है. ठीक है, ओके. नाउ यू कैन सी हियर पॉपुलेशन इनुमरेशन, जनसंख्या गणना. ऑल राइट, अब अंडर दिस यू कैन सी हियर एज, सेक्स, marital status, education, occupation, religion, caste, tribe, disability, migration history, includes homeless population as well. अभी आप देखो कितना सारा डिटेलिंग है इधर यहाँ पर.
Now you can see here information about education, religion, age and sex. So this means कि जो हम इनिशिएटिव चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेंडर रेशो को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. वी कैन रिकैलिब्रेट आर पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं. डिसेबल्स जो है, दिव्यांगों के लिए योजनाएं हैं, नंबर ही नहीं होगा, डिसेबिलिटीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो पॉलिसी बनेगी कैसे, राइट? एंड दैट्स माइग्रेशन. कितने लोग किस एरिया से कहां से मूवमेंट हो रहा है, कहां से मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, किन एरियाज में लोग जा रहे हैं, ऑलराइट, क्यों हो रहा है, रीजंस क्या है. अब ये सब चीजें कब मालूम चलेंगे, जब ये डेटा हमारे सामने निकल करके आएगा, राइट? एज वेल एज होमलेस पीपल कितने हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, गवर्नमेंट यहाँ पर कैसे सपोर्ट कर सकती है, पुश कर सकती है, ऑल दिस थिंग्स, ऑल राइट. सो आर एसोसिएटेड विद दिस. एज वेल एज आप यहाँ पर देखेंगे डिजिटल सेंसस है, मोबाइल एप्स का यूज है, सेल्फ इन्यूमरेशन है, सिटीजन खुद से भी यहाँ पर डेटा फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन डेटा एंट्री भी साथ में है कि मान लीजिए कहीं पर नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है, लोगों को बहुत जानकारी नहीं, टेक नहीं मिला, तो वहां पर ऑफलाइन डेटा लिखा जाएगा, बाद में इसको सिंक किया जाएगा, फीड किया जाएगा. जीपीएस टैगिंग इज ऑल्सो हियर. जियो फेंसिंग इज ऑल्सो. जियो फेंसिंग में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में किसी व्यक्ति को टास्क दिया गया है कि आप इस एरिया में जाकर के पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करेंगे कि तो पर्सन वहां पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. जियो फेंसिंग इस बात को दिखाता है कि आप इस टेरिटरी में इस टाइम पर मौजूद थे या नहीं थे. ऑलराइट, दिस इज व्हाट जीपीएस टैगिंग एंड एसोसिएटेड विद जियो फेंसिंग. कोविड-19 में जियो फेंसिंग को काफी यूज किया गया था. किसी को मान लीजिए कि आप रखा गया है कि अभी आप क्वारंटाइन किए गए हैं, ऑलराइट, एंड वो अपने घर से बाहर निकल गया, तो जियो फेंसिंग से मालूम चल जा रहा था. जियो फेंसिंग जीपीएस के साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो जियो फेंसिंग से मालूम चल जा रहा था कि आप अपने घर में थे या घर से बाहर निकल गए थे. फाइन. सो दीज आर द थिंग्स हियर. मॉनिटरिंग थ्रू सेंसस, सीएमएमएस, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पर मॉनिटरिंग करी जाएगी. देन हिस्टोरिक कास्ट इन्यूमरेशन आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड, 1931 में हुआ था. ओके, इससे क्या होगा कि वेलफेयर टारगेटिंग, सोशल जस्टिस पॉलिसीज, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, खासतौर पे SC ST ग्रुप्स के लिए, ऑलराइट. एज वेल एज हमने फीमेल रिजर्वेशन की बात भी करी है, 1/3 विमेन रिजर्वेशन की बातें करी हैं, तो उसको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सकेगा जब ये हम यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर देंगे. ऑलराइट, देन फर्दर व्हाट वी सी हियर, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस. मैंने पहले ही जोड़ के बता दिया आपको व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंसस. सो यू कैन सी हियर इंपॉर्टेंस में पॉलिसी एंड प्लानिंग रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, ऑलराइट. रिसोर्स एलोकेशन में, सेंटर स्टेट फिजिकल ट्रांसफर्स में, उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन अभी मैंने दिखाया आपको. गवर्नेंस रिफॉर्म में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो सकती है यहाँ पर, एंड डिजिटल गवर्नेंस को भी आगे बढ़ाया जा सकता है. बट वी हैव सर्टेन इश्यूज एंड कंसर्न. कुछ हमारे सामने यहाँ पर इश्यूज भी हैं, कंसर्न की बातें भी हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड, ऑलराइट. आप अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज, ये अभी भी हमने इम्प्रूव किया है, वी इम्प्रूव्ड, बट स्टिल अभी वो उतना बेटर नहीं है कि वो सिटीज के साथ में मैच कर सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क, सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. डेटा ब्रीचेस, जिस तरीके से अलग अलग मेजर इंस्टीट्यूशन से, बैंकिंग से भी डेटा ब्रीच हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं. सो ऐसे में डेटा सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न, राइट, is a major concern, as well as coordination across states and union territories, urban challenges, migrants हैं, slum areas हैं, all right. इसके अलावा जिस तरीके से आप हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाया, राइट नाउ SIR इज गोइंग ऑन, ऑल राइट. सो लोगों के मन में भी डर है, एप्रीहेंशन है उनके ऊपर, उनके मन में ओवर द कास्ट डेटा, ऑल राइट, एज वेल एज कि ये जो यहाँ पर पॉपुलेशन सेंसस जो होगा, इस डेटा को यूज कैसे किया जाएगा, तो दीज आर एप्रीहेंशंस अमंग द मासेस. तो अगर आप देखें तो 10-15 साल पहले सिचुएशन वाज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं था, लेकिन अभी पास्ट 10 to 11 ईयर्स में थिंग्स वर चेंज्ड, चीजें धीरे धीरे बदली हैं. तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है,
ऑफिसर्स, एज एन ऑफिसर अगर आप अधिकारी बनते हैं तो ऑफिसर के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? लिसन गाइज, नंबर वन, यू कैन प्लान फॉर द इंटेंसिव ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग प्लान कर सकते हैं, जो भी वॉलंटियर्स हैं, जो भी यहाँ पर लोग वर्क करेंगे उनके लिए। एज वेल एज स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को प्रमोट किया जा सकता है, पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल, एज वेल एज सेंसस डेटा को use we can use this census data, you can see here, we can see here, use census data for inclusive growth. So these are the things which can be done, जो कि यहाँ पर हो सकती हैं. All right, now aspirants, we have two smaller topics. One is olive ridley turtle conservation, another one is Rajgir as migratory bird hub. All right, so what's happening here, क्या हुआ यहाँ पर? First of all, let's examine the olive ridley टर्टल कंजर्वेशन. ओलिव रिडले टर्टल जिसका नाम है, अगर आप देखें ओलिव रिडले, सो ओलिव जो ग्रीन कलर का ये जो पौधा होता है, पेड़ होता है. ऑलराइट, सो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक पिक होनी चाहिए. तो ग्रीन जो कलर है इसका, इस कलर की वजह से यहाँ पर इसको ओलिव के साथ में जोड़ा गया है. ऑलराइट, एंड अगर हम समंदर की बात करें तो सीज के अंदर में जो है ये सबसे छोटी प्रजाति है. आप छोटा है समंदर के अंदर, वो सी टर्टल होते हैं उसके अंदर में स्मॉलेस्ट है ओलिव रिडले. ऑलराइट, एंड पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, तीनों में हमें देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल एरियाज में खास तौर पे. ऑलराइट, एंड एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है इन फ्रंट ऑफ द ओलिव रिडले. ओलिव रिडले के सामने, इसके सामने जो एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है द ऑन गोइंग ओलिव रिडले टर्टल नेस्टिंग सीजन इज अंडर थ्रेट. क्यों? क्योंकि एक तो फिशिंग नेट इंटेंगलमेंट, समंदर में फिशिंग के टाइम पर ये जाल में फंस जाते हैं. देन आर्टिफिशियल लाइटनिंग, लाइटनिंग से रास्ता भटकने का डर रहता है. इसके अलावा चाइना में कई सारे फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, और खास तौर पर जिन एरियाज में ओलिव रिडले टर्टल्स नेस्टिंग के लिए आते हैं उन्हीं एरियाज में सेलिब्रेशन ऑफ दिस स्काई लैंटर्न फेस्टिवल. तो इसकी वजह से कई सारे जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इन सब चीजों के लिए कंसर्न रेज किए थे. ऑलराइट, ओके, सो कलर की वजह से मैंने बताया हार्ट शेप्ड ओलिव ग्रेइश ग्रीन कैरापेस, जो ऊपर का जो कवर होता है, तो दैट्स व्हाई इनको नाम मिला है ओलिव रिडले. ऑलराइट, ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलते हैं, इंडो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडियन ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक में देखने को मिलते हैं. ऑलराइट, एंड नवंबर दिसंबर से अप्रैल मई तक ये इंडिया में आते रहते हैं, नेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ पर आते रहते हैं. इंडिया में नेस्टिंग के लिए कौन कौन से एरियाज हैं? सो स्पेशली इन एरिया इन इंडिया, उड़ीसा के जो एरियाज हैं वहां पर हम देखते हैं. एंड नेस्टिंग एरिया इज नोन एज अरीबाड़ा और अरीबाड़ा. दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे. दिस इज द नेस्टिंग एरिया. नेस्ट ये क्या है? मास नेस्टिंग एरिया ऑफ ओलिव रिडले टर्टल इज नोन एज द अरीबाड़ा. ऑलराइट, एंड सामूहिक रूप से मतलब ये नेस्टिंग करके एक बार में 100 to 140 एग्स यहाँ पर देते हैं. गाहिर माथा इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन ओडिशा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोकरी. यहाँ पर जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं दुनिया भर के अंदर में सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर वो नेस्टिंग करने के लिए आते हैं. दिस इज इन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड के एरियाज में भी हम इनको देखते हैं. ऑलराइट, ओलिव रिडले टर्टल्स को. जस्ट अ व्हाइल, यू कैन सी हियर दिस इज गाहिर माथा. आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी हियर गाहिर माथा ओलिव रिडले नेस्टिंग बीच. एंड you can see here fed by the Mahanadi river, Rushikulya river is also here. तो mass nesting beaches है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इनको. this is पोसो पोर्ट साइट है यहाँ पर. रुशिकुल्या रिवर का एरिया है, पारादीप यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी के पास गाहिर माता का एरिया है. ऑलराइट, as well as when we see the Wildlife Protection Act 1972, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 के अंदर में जो ओलिव रिडले टर्टल है प्रोटेक्टेड है. IUCN की अगर लिस्ट हम देखें, सो वल्नरेबल में रखा गया है. साइट्स CITES की बात करें, देन अपेंडिक्स 1 के अंदर में रखा गया है इसको. तो एक तरीके से सुरक्षा की जरूरत है
ओलिव रिडले टर्टल को। देन इसको बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया, इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उड़ीसा के कोस्ट के आसपास में इलीगल ट्रॉलिंग को रोकने के लिए, ताकि जो फिशर्स हैं वो इलीगल ट्रॉलिंग ना करें, सो दैट यहाँ पर जो टर्टल्स हैं इनको नुकसान ना पहुंचे। टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस भी नेट्स में लगाई जा रही हैं, ताकि टर्टल अगर फंस भी जाए नेट्स में तो वहां से वो निकल जाए। ऑलराइट, टैगिंग प्रोग्राम्स, वेस्टर्न घाट के आसपास में टैगिंग प्रोग्राम्स भी लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं उनके रूट को ट्रैक करने के लिए। सैटेलाइट एंड फ्लिपर टैगिंग इज डन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में किया जा रहा है। ऑलराइट, सो मेजर थ्रेट्स क्या है, तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है फिशिंग नेट का। ऑलराइट, देन इलीगल पोचिंग एंड एग ट्रेड, इनके अंडे खरीद लिए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं। कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आर्टिफिशियल लाइटनिंग की प्रॉब्लम्स हैं। क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग द सेक्स रेशो, खास तौर पर जो टर्टल्स हैं इनके अंदर में। ऑलराइट, एज वेल एज आप एक्स की बात मैं बता ही चुका हूँ। प्लास्टिक इंजेक्शन, प्लास्टिक खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारे जो टर्टल्स हैं वो मर जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सो ओलिव रिडले टर्टल्स जो हैं वो फ्लैगशिप स्पीसीज हैं, खासतौर पे इंडिया के अगर मरीन बायोडाइवर्सिटी की हम बात करनी शुरू करते हैं तो ऐसे में हमें इनको बचाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बना करके उनको ठीक से इन्फोर्स करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। After this aspirants, we have next topic, that is a Rajgir as a migratory bird hub. All right. So it's a very good news for Bihar. बिहार के लिए बड़ी अच्छी खबर है ये, एंड खास तौर पर विद रिस्पेक्ट टू द इको टूरिज्म। एंड राजगीर के अंदर में बिहार में जो ग्लोबल माइग्रेटरी रूट्स हैं, माइग्रेटरी फ्लाईवेज हैं, राजगीर में काफी सारे बर्ड्स यहाँ पर पहुंचे इस साल यहाँ पर। ऑलराइट, खास तौर पर फ्रॉम यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, मैनी बर्ड्स फ्रॉम यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, यूरोप और सेंट्रल एशिया से काफी सारे बर्ड्स पहुंचे। ऑलराइट, एंड राजगीर जू सफारी को एक बड़ा पुश मिला यहाँ से विंटर के टाइम पर खास तौर पे। एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो आप अलग अलग नंबर्स हैं, आई कैन शो यू सम नंबर्स, रटने नहीं है, याद नहीं करने, आपको सिर्फ आइडिया रखना है कि डाइवर्सिटी एक काफी ज्यादा अच्छी रही यहाँ पर। ऑलराइट, और जो आसपास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर भी, दीज आर नोन फॉर द स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। राजगीर का एरिया है गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के लाइफ से जुड़ा हुआ एरिया रहा है। ऑलराइट, एंड यू कैन सी हियर 109 species recorded in Feb 2025, December 2025। आप 135 के आसपास स्पीसीज रहे हैं यहाँ पर। ऑलराइट, एंड फर्दर यू कैन सी हियर आप सेवरल सेंट्रल एशियन वार्बलर्स यहाँ पर आए। ऑलराइट, आप यहाँ देख सकते हैं वार्बलर्स रहे, सल्फर बेलिट, ये सब प्रजातियों के नाम हैं जो कि आप देखे गए यहाँ पर। यूरेशिया के जो एरिया है, सेंट्रल एशिया के एरियाज हैं, वहां से भी कई सारे बर्ड्स इंडिया के अंदर में यहाँ पर आप एंटर हुए। ऑलराइट, एंड अब इतने सारे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरेशिया, यूरोप के एरिया से अगर बर्ड्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर रुक रहे हैं आकर के, इट इंडिकेट्स वन थिंग, दैट इज व्हाट, कि हैबिटेट क्वालिटी इज इम्प्रूविंग। ऑलराइट, हैबिटेट इज गुड एंड फूड भी अवेलेबल हो रहा है। राइट, तो एबेंडेंट इंसेक्ट लाइफ के इंसेक्ट्स यहाँ पर ठीक हैं, हेल्दी हैबिटेट है, बायोडाइवर्सिटी इज इम्प्रूविंग, इकोलॉजिकल कंडीशंस आर इम्प्रूविंग। ऑलराइट, एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ वल्चर स्पीसीज, वल्चर का आना, वल्चर्स का मिलना, तो ये भी इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर एज वेल। ऑलराइट, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, अपने लिए सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या हो सकता है? डेफिनेटली वाइडर फ्लाईवे, इंटरनेशनल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में इंडिया का जो रोल है वो बढ़ेगा। ऑलराइट, एज वेल एज जो बर्ड्स का जो बिहेवियर है उसको समझने में भी हमें हेल्प मिलेगी। एज वेल एज इंडिया के लिए क्या है, कंजर्वेशन फॉर द बायोडाइवर्सिटी, सपोर्ट टू इको टूरिज्म, generation of employment, all right, as well as
प्रोटेक्शन ऑफ द हैबिटेट, अगर हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं देन दिस विल लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वहां की तरफ हमें लेकर के जाता है। ऑलराइट, सो एंड साथ साथ में और क्या हो सकता है, वी कैन एस्टेब्लिश राजगीर एज अ ग्लोबल इकोलॉजिकल हब, ग्लोबल इकोलॉजिकल हब के फॉर्म में भी हम राजगीर को डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दीज आर द थिंग्स एस्पिरेंट्स, ये चीजें हैं, ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे सामने जो कि इस पूरी क्लास में डिस्कस करने थे एंड वी डिड दिस डिस्कशन। ऑलराइट, सो कीप लर्निंग, सीखते रहिए, मॉक इंटरव्यूज अटेंड करते रहिए। ऑलराइट, 21 से आप लोगों का प्रोग्राम अब आगे बढ़ रहा है, शेड्यूल जो आया है बीपीएससी की तरफ से, गियर अप करिए अपने आप को। सो गाइज, टुगेदर वी कैन, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।